Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have started exercise of chapter number 7 and we have talked about question number 7.1 and 7.2. Now we are going to give answer of question number 7.3. Here the first question is give the commonly used units of force. Firstly, we need to know that what are units. Units are basically a standard quantity that we require to describe an unknown quantity. For example, we use units of centigrade or Fahrenheit to measure the body temperature. If we say that the body temperature is 30, then it gives us an incomplete information and we can't understand what is meant by 30. But when we say that the body temperature is 30 degree, then we can build a clear understanding about the body temperature. Similarly, here the question is about the unit of force, area and pressure. Let us discuss about these questions one by one. Here the first question is give the commonly used units of force. Here the question demands from us the units that we commonly use to describe force. So the commonly used units of force are Newton and kilogram meter per square. The next question is give the commonly used units of area. The commonly used units of area are meter square and centimeter square. The next question is give the commonly used units of pressure, and we know that the commonly used units of pressure are Pascal and Newton meter per square. The next question is state Pascal's law. The answer of this question is on page number 103. In the answer of this question, you will write the definition of Pascal's law. About Pascal's law, we have learned that if we enclosed a fluid in a container, then this fluid exerted pressure on the walls of the container and this pressure is transmitted equally in all directions. This fact is called Pascal's law. The next question is differentiate between hydrostatic pressure and atmospheric pressure. The answer of this question is on page number 102 and 108. In the answer of this question, you will write the definition of hydrostatic pressure as well as the definition of atmospheric pressure. About hydrostatic pressure, we know that the pressure exerted by a liquid increases with the depth of the container. As the depth increases, the pressure also increases. About atmospheric pressure, we know that there is the atmosphere that surrounds the earth and due to the earth's force of gravity, this air has weight. So the weight of the air column per unit area on the earth is the pressure which is known as atmospheric pressure as it is exerted by atmosphere. The next question is in the figure shown below indicate the location where atmospheric pressure is expected to be lowest. As we have already discussed about atmospheric pressure is that atmospheric pressure have inverse relation with altitude. So the point D is at the highest location. So we can say that D is the point where the atmospheric pressure is expected to be lowest. The next question is explain the following. Water pressure. The answer of this question is on page number 102. In the answer of this question, you will write the complete topic of water pressure. About water pressure, we have discussed that water pressure is actually a pressure that is exerted by water molecules enclosed in a container or in a tank. The speed of the water coming out of the tank depends upon this water pressure, and in turn, the water pressure depends upon the height of the tank from the ground level, and it is also depends upon the depth of the container. As the depth of the container is greater, then the water pressure becomes higher. This is also known as hydrostatic pressure. Then we have atmospheric pressure. The answer of this question is on page number 108. In atmospheric pressure, firstly you will write the definition of atmospheric pressure. Then you will write the formula of atmospheric pressure, which is actually a weight of air per unit area of earth. Then you will write about barometer. Barometer is actually an instrument that is used to measure atmospheric pressure. After that you will write about atmosphere. Atmosphere is also known as standard atmospheric pressure and these are the units that are used to describe the atmospheric pressure. After that you will write the relation of atmospheric pressure and altitude. Altitude and atmospheric pressure both have inverse relation. It means that when the altitude increases, then the atmospheric pressure goes on decreases. The next is about aerosol. The answer of this question is on page number 107.
In the answer of this question, firstly, you will describe aerosol. The product that uses sol system are called aerosol. Sol is actually a mixture of suspended solid particles in a gas or air. Then you will describe the working of an aerosol system. In aerosol, there are two types of fluids. The first one is known as propellant and the second one is the product. Propellant is actually a mean of pushing the product out of the can. At room temperature, this propellant vaporizes and pushes the pressure on the product. And when we push the button, then the valve opens and this product comes out of the can. The next question 7.5 is describe an application of Pascal's law. The answer of this question is on page number 104. And we know that Jack system is an application of Pascal's law. In this system, there are two types of pistons. The first one is the small piston and the second one is the large piston. When we apply a force on a small piston, then the weight that is present on the large piston carries up, and this force is transmitted by a fluid which is oil in this system. The next question 7.6 is describe the use of pneumatic system in daily life. The answer of this question is on page number 106. We have learned that we use a pressurized air to do some mechanical work. So pneumatics have vast number of applications in our daily life. We use this compressed air in automobile tires for the smooth running of cars, and this compressed air is also used in spray paints, and we can also use this compressed air in air power motors and to run tools like hammer drills, and this compressed air is also used in brake system of heavy vehicles. When a brake pad is pressed, then the compressed air is released from the tank and this air pushes the brake pad against the moving wheel to stop the vehicle. And this compressed air is also used in dentistry tools. दो मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे? जो हमारे पास पहला सवाल है वो है फोर्स का आम इस्तेमाल होने वाला यूनिट बताएं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या हैं और यूनिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। यूनिट दरअसल एक मियारी मिकदार है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको किसी भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि बॉडी का टेम्परेचर 30 है तो इससे हमें इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन अगर हम कहें कि बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो डिग्री जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, तो इससे हमें क्लियरली समझ आ जाती है कि बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री है। इसी तरह से फोर्स का आम इस्तेमाल होने वाला यूनिट बताएं, या एरिया के लिए आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट, प्रेशर के लिए आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स। तो इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि फोर्स, एरिया और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम आमतौर पर जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो हमने बताने हैं। तो फोर्स का आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया के आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स बताएं। तो एरिया के आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। प्रेशर के आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स बताएं। तो प्रेशर के आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ़र्क वाज़िया करें। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 100 और 106 पर है। इस सवाल के जवाब में आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेफिनेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में हमने देखा था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसी भी कंटेनर की गहराई पर डिपेंड करता है, यानी अगर गहराई ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से वो प्रेशर जो किसी भी कंटेनर की गहराई के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन के गिर्द हवा का एक गुलाफ है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ज़मीन के यूनिट एरिया पर हवा के कॉलम का जो वज़न होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नीचे दी गई शक्ल में इस मुकाम की निशानदेही करें जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम से कम मुतवक्के है। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बुलंदी का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी बुलंदी के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट डी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या है। इसी वजह से पॉइंट डी जो है वो मुकाम है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम से कम होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है कि मंदरजा झैल की वजाहत करें। इसमें सबसे पहला है वाटर प्रेशर। इसका आंसर पेज नंबर 102 पर है। क्वेश्चन के आंसर में आप वाटर प्रेशर वाला कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे।
वाटर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वाटर प्रेशर दरअसल वो प्रेशर होता है जो पानी के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों पर लगाते हैं। इसी वाटर प्रेशर की वजह से पानी किसी होल या किसी आउटलेट में से, कंटेनर में से बाहर आता है। पानी के बाहर आने की जो स्पीड है वो वाटर प्रेशर पर डिपेंड करती है, और वाटर प्रेशर जो है वो कंटेनर की हाइट और कंटेनर की डेप्थ पर डिपेंड करता है। अगर कंटेनर ऊंची जगह पर होगा, यानी उसका ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वाटर प्रेशर ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अगर कंटेनर की डेप्थ ज़्यादा होगी, यानी अगर कंटेनर की गहराई ज़्यादा है, तो भी जो वाटर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर पेज नंबर 106 पर है। इसमें आप सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे, देन आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है उसके बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि बैरोमीटर एक ऐसा आला है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बुलंदी का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरोसोल्स। इसका आंसर पेज नंबर 105 पर है। इसमें आप सबसे पहले एरोसोल्स को डिफाइन करेंगे, यानी वो सिस्टम जिसमें सोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उनको एरोसोल कहते हैं। और सोल क्या है? सोल दरअसल हवा में मौलिक ठोस या माया के ज़र्रात का मिक्सचर होता है। इसके बाद आप एरोसोल की वर्किंग बताएंगे। तो एरोसोल में दो किस्म की फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है प्रोपेलेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोपेलेंट दरअसल वो फ्लूइड है जो रूम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट जो है वो दरअसल वो मटेरियल है जो हमें रिक्वायर होता है। प्रोपेलेंट ही प्रोडक्ट को कैन से बाहर निकालने का ज़रिया बनता है। जब प्रोपेलेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोडक्ट के ऊपर प्रेशर लगाता है, और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो एक वेल्व ओपन हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट कैन में से बाहर निकल जाता है। अगला सवाल है पास्कल के कानून का कोई एक इतलाक बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 102 पर है। और जैक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जैक सिस्टम पास्कल के कानून की एक एप्लीकेशन है। इस सिस्टम के अंदर दो तरह के पिस्टन्स होते हैं, एक होता है छोटा पिस्टन और दूसरा बड़ा पिस्टन या बड़ा सिलेंडर होता है। जब हम छोटे पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स बड़े पिस्टन की तरफ मुंतकिल होती है, और इस तरह से बड़े पिस्टन के ऊपर जो भी वेट वगैरह होता है उसको हम कैरी कर सकते हैं। इस फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इन दोनों सिलेंडर्स के अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पास्कल के कानून में हमने पढ़ा था फ्लूइड के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह से ये फोर्स ऑयल के थ्रू बड़े पिस्टन की तरफ मूव करती है, और बड़े पिस्टन के ऊपर जो भी वेट वगैरह होता है उसको हम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल बयान करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 104 पर है। न्यूमेटिक्स की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि दबावशुदा हवा को हम गाड़ियों को रवानी से चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट स्प्रे वगैरह में भी दबावशुदा हवा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एयर पावर मोटर्स में दबावशुदा हवा को इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर्स उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर बिजली की मोटरों का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। इसके अलावा न्यूमेटिक औजार यानी हथौड़े, ड्रिल्स वगैरह के काम करने के लिए भी दबावशुदा हवा की ज़रूरत होती है। गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है इसमें भी दबावशुदा हवा को इस्तेमाल किया जाता है। जब ब्रेक पैड को दबाया जाता है तो स्टोरेज टैंक से हवा खारिज हो जाती है, और ये हवा पहिए की हरकत को रोकने के लिए जो ब्रेक शू होता है उसको दबाती है, जिसकी वजह से पहिया हरकत करना रोक देता है। और दांतों के इलाज के लिए जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें भी दबावशुदा हवा को इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।